Shall we pray? Father in heaven, thank you. Thank you so much for the Sabbath day. Thank you so much for the freedom to study your words joyfully and thankfully. Father, our hearts are overburdened. Our hearts are heavy. We plead, may you give us rest. May you give us peace through your holy and righteous words. Father, forgive us for our sins and shortcomings. Forgive us for we have failed you terribly. Forgive us for we have broken your heart every second. Father, thank you for this special day, the Sabbath rest, a day to remember that you are the Creator God, the true God, and the living God. We plead, God, on this rest day, may you renew us and revive us through your Spirit. And we plead, be with us now in a very special way as we go into the study. May your Spirit lead, and may your Spirit bless, and may your Spirit empower. And may this study help us to get closer to you. May you strengthen our faith from above. Thank you, God, for you are able to do it. May your will be done, and may you be whole. In Jesus' name we pray. Amen. I really want to wish each and every one of you a blessed Sabbath. मैं आप सभी को जो है साबत दिन का मुबारकबाद देना चाहता हूँ. And we are so happy whenever we enter the Sabbath hours. हम बहुत खुश होते हैं जब भी हम जो है विश्राम दिन में प्रवेश करते हैं. और हम विश्वास करते हैं कि जो पूरे हफ्ते का काम काज था उसके बाद जब ये दिन आता है तो वाकई में मन में एक शांति आती है और एक आराम को हम महसूस करते हैं. एंड आई बिलीव दैट being in the activities of the week and then entering the Sabbath, it really gives us peace and rest to us. And we thank God for this special day, for we know that there is no day as good and as special as the Sabbath day. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं इस खास दिन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि विश्राम दिन जैसा खास और अहम दिन और दूसरा है ही नहीं. And we also want to thank God for the privilege and for the joy to study the words together. और हम परमेश्वर का और इसलिए भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने एक सुनहरा मौका और समय दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को एक साथ पढ़ सके. And we saw many things about millennium and rather many extras which are connected with millennium. और हमने बहुत से चीजें जो है हजार वर्षों से जुड़ी हुई और कहना चाहिए कि अधिक चीजों को देखा जो हजार वर्षों के साथ करीबी रूप से जुड़ी हुई. And today we are going to end this study of millennium. और आज जो है हम इस पढ़ाई का हम अंत करेंगे. And the the things that we have studied, I believe you remember and you will remember. और हम विश्वास करते हैं कि जिन चीजों को हमने पढ़ा है उसको आप याद रखेंगे और उनको आप दूसरों को भी सिखाएंगे. So we see in the book of Revelation, the book of Revelation tells us that after the close of probation, the seven last plagues will come. प्रकाशित वाक्य की किताब हमें बताती है कि दया का दरवाजा बंद होने के बाद जो है सात आखिरी के विपत्तियां आएंगी. एंड आफ्टर दैट रादर अपॉन द सेवेंथ प्लेग, उसके बाद और कहना चाहिए उस सातवें विपत्ति में जो है बहुत अद्भुत घटनाएं होंगी और उनमें से एक घटना होगी वो है खास पुनर्स्थान.
And on the seventh plague, we see that many events will happen, like earthquakes and hailstorms and other things. But with that, also a special resurrection will take place. And also, we will hear the voice of God, which announces the hour and day of the second coming of जीसस क्राइस्ट। और हम देखते हैं कि उस खास पुनरुत्थान के साथ उस सातवें विपत्ति में आप देखते हैं कि परमेश्वर का आवाज भी सुनाई देगा, जिसके बाद आप देखते हैं कि यीशु मसीह का आगमन का दिन और समय का ऐलान किया जाएगा। आफ्टर दैट वी सी द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके बाद हम यीशु मसीह का दूसरा आगमन को हम देखते हैं, जिस पर जो है पहला पुनरुत्थान होता है, ऑन विच वी सी द फर्स्ट रेजरेक्शन। And after the first resurrection, the millennium begins. पहला पुनरुत्थान के बाद जो है हम देखते हैं कि वो 1000 वर्ष की शुरुआत होती है। So we will look into some of the things which are very, very important. And I want you all to please turn with me to the book of uh, um rather it's बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 25 वर्स 31। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जो है यिर्मयाह उसका 25 का 31 खोलें। यहाँ अंग्रेजी में वचन इस प्रकार कहता है, एंड अ नॉइज shall come even to the ends of the earth, for the Lord hath a controversy with the nations. He will plead with all flesh. He will give them that are wicked to the sword. यहाँ वचन स्पष्ट कहता है कि यहोवा का जो है एक जातियों के साथ एक एक संघर्ष है, और वो हर एक जाति के लोगों के से विनती करेंगे। पर उस समय वो विनती का समय समाप्त हो जाने पर जो है, जो दुष्ट रह गए हैं, जो मन नहीं फिराते हैं, उनको जो है सजा मिलेगी। And we know that for 6,000 years, the great controversy will be in progress. हम जानते हैं कि लगभग 6000 वर्ष तक जो है, जो महासंघर्ष है वो चलेगी। और ये जो है वचन बिल्कुल इसको स्पष्ट करता है, एंड द स्क्रिप्चर्स मेक इट वेरी क्लियर। एंड when we look further, it says that at the coming of Christ, the wicked are blotted from the face of the earth. जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है, जो दुष्ट है वो जो है इस पूरे पृथ्वी से वो नाश किए जाते हैं। How it is done? They are consumed with the spirit of his mouth and destroyed by the brightness of his glory. और वो कैसे होगा? परमेश्वर का शब्द को सुनकर और परमेश्वर के उस महिमा, उसके चमक के द्वारा जो है हम देखते हैं कि दुष्टों का नाश होगा। And we see that Christ takes his people to the city of God, and the earth is empty of its inhabitants. And we see that the earth will be, God will take his people, Christ will take his people to the city of God. हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को परमेश्वर के शहर स्वर्ग ले जाएंगे, और ये पूरा पृथ्वी जो है बिल्कुल खाली रहेगा। यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल खाली का खाली रहेगा। So we are seeing that many events are happening here. Many things are happening because we know that before the second coming of Jesus Christ, plagues are coming. And we study about the seven trumpets, we study about the seven seals and many different things. हम देखते हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले जो है बहुत से घटनाएं हो रही हैं। वो सात मोहर हो गए, या आप देख लीजिए सात तूरियां होगी, और ऐसे आप बहुत से घटनाओं को देख रहे हैं जो कि एक परमेश्वर की ओर से उन दुष्टों के ऊपर न्याय का एक छाप है। We see that all these events which are happening, they are all the judgments of God upon the wicked people. At the end,
the whole earth appears like a desolate wilderness. और अंत में सब घटनाओं के होने के बाद आप देखेंगे जो ये पृथ्वी जो है बिल्कुल उस रेगिस्तान की तरह हो जाएगा जिस जहां पर जो है लोग नहीं रहते हैं. You will see the ruins of cities and villages destroyed by earthquake. You will see uprooted trees, raised rocks thrown out by the sea or torn out of the earth itself, and they are scattered all over the earth. और आप देखेंगे कि ये जो पूरा पृथ्वी जो है बिल्कुल वो तहस नहस होगा, और जो शहर है वो उजड़े होंगे, जो गांव है वो उजड़े होंगे. ये सब कैसे होगा? भूकंप के कारण होगा. और आप देखेंगे पेड़ों को उखड़ा हुआ देखेंगे. आप देखेंगे कि पत्थर जो है पूरे इधर उधर जो है फैले हुए हैं. The scene will be terrifying. The scene will be unbelievable. जो मंजर होगा वो विश्वास के बाहर होगा. वो मंजर ऐसा होगा कि आप जिसके विषय में आप सोच भी नहीं सकते. But now the events takes place foreshadow in the last solemn service of the day of event. पर अब जो घटनाएं होने वाली हैं वो घटना होने वाली है जिसके विषय में आप जो है उस पवित्र विधि में देखते हैं, जो प्रायश्चित का दिन में जो विधि देखते हैं, अब वो होने वाला है. If you remember, when the ministration in the Holy of Holies had been completed, the sins of Israel had been removed from the sanctuary by virtue of the blood of sin offering. Then the scapegoat was presented alive before the Lord, and in the presence of the congregation, the high priest confessed over him all the iniquities of the children of Israel and all the transgressions in all their sins, and putting them upon the head of the scapegoat. हम जानते हैं कि उस प्रयाश्चित के दिन में जब महापवित्र स्थान का कार्य जब पूरा हो जाता है, तो हम देखते हैं कि इसराइलियों का पाप को जो है पवित्र स्थान से वो उस लहू के द्वारा, उस पाप के बलिदान के द्वारा जो है उस उस एजेजेल जो बकरी है, बकरा है, उसके ऊपर जो है हम देखते हैं कि उसके ऊपर डाल दिया जाता है, और सब पापों को उसके ऊपर जो है डाल दिया जाता है. और उसके बाद जो है उस बकरी को क्या कर दिया जाता है? उस जंगल में भेज दिया जाता है. And this same scene, this very act will this time be done by Christ himself, our high priest. और ये बिल्कुल यही घटना जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, इसको आप लेवियो उसको 16 का 21 पे देख सकते हैं. हम देखते हैं कि इसी घटना, इसी कार्य को जो है यीशु मसीह करेंगे. ये जो we see that two goats were there, and the were chosen by Lot. हम देखते हैं कि दो बकरियों को लिया जाता था, और वो दो बकरियों को जो है उस चिट डालकर जो है उनको चुना जाता था. वन वॉज फॉर द लॉर्ड एंड वन वॉज एज अ स्केपगोट. हम देखते हैं कि एक जो है यहोवा के लिए था, और एक हम देखते हैं कि उसको जो है हम देखते हैं कि उस बकरा जो कि पापों को लेने वाला, जो कि शैतान को दिखाता है, उसके लिए चुना जाता है. And we see in the book of Revelation, the Revelator foretells the banishment of Satan and the condition of chaos and desolation to which the earth is to be reduced. हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला यूहन्ना हमें बताता है कि किस प्रकार जो है शैतान को जो है कैद बनाया जाएगा, या क्या उसका हाल होगा. और हम ये भी देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला यूहन्ना बताता है कि इस पृथ्वी का क्या हाल या क्या दशा होने वाला है. And also, Revelator tells us that this condition will exist for next 1,000 years. और यूहन्ना जो है हमें ये भी बताता है कि ये दशा जो है अगले 1,000 वर्षों के लिए रहेंगी. If you come with me to the book of Revelation, chapter 20, verse 1 through 3. यदि आप मेरे साथ आए प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 1 से लेकर 3.
मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, मैं चाहता हूं कि आप हिंदी में साथ साथ में पढ़ते जाइए। यहां पर वचन इस प्रकार लिखता है कि आई सॉ एन एंजल कम डाउन फ्रॉम हेवन हैविंग द की ऑफ द बॉटमलेस पिट and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and sucked him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more till the 1,000 years should be fulfilled. And after that, he must be loosed a little season. उम्मीद करता हूं कि आप जो है हिंदी में साथ साथ जो है इन वचनों को पढ़ते जा रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक शब्द का, अगर हम इसे हिंदी में देखें, यहाँ पर एक शब्द का जिक्र किया जा रहा है। हम उस शब्द को यहाँ खास तौर से देखना चाहेंगे। 20 का 1 से लेकर 3 में अगर आप देखें तो यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अंग्रेजी में बॉटमलेस पिट कहा गया है, पर यदि हिंदी में देखें तो अथाह कुंड की कुंजी, यहाँ अथाह कुंड जो है शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इस चीज को जो है आप अथाह कुंड उस शब्द को जो है ध्यान रखिएगा। So we see here that the expression bottomless pit represents the earth in a state of confusion and darkness. And this thing is evident from other scriptures. हम यहाँ देखते हैं कि एक शब्द अथवा कुंड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पृथ्वी का स्थिति को दर्शाता है, जो कि बिल्कुल कहेंगे कि वो बिल्कुल आप देख के जो है आप हैरान हो जाएंगे और बिल्कुल अंधकार है। और ये चीज को आप यदि देखें तो ये चीज को जो है वचन के आयत जो है बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। एंड if we look into the book of Genesis or the creation account concerning the condition of the earth before the creation in the beginning, the Bible says that it was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाए तो हम वहां स्पष्ट देखते हैं कि वहां पर पृथ्वी का जो स्थिति था सृष्टि से पहले उसका जिक्र करता है, और वचन हमें स्पष्ट बताता है कि ये जो पृथ्वी जो था विदाउट कोई आकार की नहीं था और खाली था, और बिल्कुल उस पे अंधेरा था। हम देख सकते हैं कि वचन इस चीज को इस प्रकार से जो है हमारे सामने वर्णन करता है। आप इसके लिए उत्पत्ति 1 का 2 को आप पढ़ सकते हैं। We can read Genesis chapter 1 verse 2 where the condition of the earth is described. It says, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the earth. उत्पत्ति उसका 1 का 2 कहता है, और पृथ्वी विडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरी गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। So we see here the condition of the earth before God created the earth into a masterpiece. आप यहाँ देखते हैं किस प्रकार पृथ्वी था इससे पहले कि परमेश्वर पृथ्वी को एक अद्भुत सृष्टि में क्या कर दे, तब्दील कर दे। तो यदि आप देखें, इफ यू सी द हिब्रू वर्ड हियर ट्रांसलेटेड डीप, यहां पर यदि आप देखें जो इब्रानी शब्द है जिसको गहरा करके जो है अगर आप हिंदी में देखें तो यहां पर आप देखते हैं वो शब्द गहरे करके जो है आप देखते हैं अनुवाद किया गया है। यदि आप देखें उसे उसे यदि आप सेप्ट्यूजेंट ग्रीक यदि आप उस पे पढ़े, जिसपे ये सेप्ट्यूजेंट ग्रीक कुछ और नहीं बल्कि ये जो है इब्रानी शब्दों को जब यूनानी शब्द में अगर जब अनुवाद किया जाता है तो उसे सेप्ट्यूजेंट कहा जाता है। If we look at the Hebrew word translated deep, and if we look at in the Septuagint, and Septuagint is basically the Greek translation of the Hebrew scriptures. And when we see the word deep particularly, the word deep particularly, we get the same word in the Septuagint.
if you take the word deep, it is the same word as bottomless pit in the book of Revelation. यदि हम उस गहरे शब्द को ले उत्पत्ति 1:2 में जिसको हम पढ़ते हैं, और उसको यदि हम सेप्ट्यूजन अनुवाद में देखें, तो वो शब्द गहरा जो है, उस अथाह कुंड करके आप उस शब्द को लिखा हुआ पाएंगे. I want to repeat myself. The word deep in the book of Genesis chapter 1 verse 2, though it is deep in the Hebrew terms, but if you look at it in Septuagint translation of that Hebrew Old Testament, that very same word is used. The word is bottomless pit. मैं अपने आप को दोहराना चाहूंगा कि उत्पत्ति 1:2 में जो शब्द गहरे को देख रहे हैं, यदि आप उसे सेप्ट्यूजेंट अनुवाद में देखें, तो जो शब्द जो गहरा है उसको यदि आप देखें, तो वो शब्द कुछ और नहीं बल्कि अथाह कुंड है. मतलब कि बेडोल कोई आकार नहीं, बिल्कुल सुनसान. दैट मीन्स दैट voidness, formless, and there is darkness, there is silence all around. And the prophecy teaches that it will be brought back partially at least to this condition. और भविष्यवाणियां बताती हैं कि पृथ्वी का हाल जो है, शायद पूरी रीति से नहीं पर कई हद तक जो है उसी हाल में पहुंच जाएगी जैसा वो सृष्टि से पहले था. Is strange. But because of the falling plagues, because of the falling judgment, the condition of the earth will come to the initial conditions of the earth before creation. ये हैरान कर देने वाली बात है, पर पृथ्वी का जो हाल है वो बिल्कुल वैसा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बहुत से परमेश्वर के न्याय जो है इस पृथ्वी पर पड़ रहे हैं, दुष्टों पर पड़ रहे हैं, प्रकृति पर पड़ रहे हैं. तो हम देखते हैं कि उस न्याय के कारण पृथ्वी का हाल जो है बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे वो सृष्टि से पहले था. विडोल कोई आकार का नहीं और बिल्कुल अंधियारा. ये जो है मंजर हो जाएगा. मीन्स दिस विल बी द कंडीशन ऑफ द अर्थ. दैट मीन्स इट इज नॉट अ हैबिटेबल प्लेस. यदि पृथ्वी का ऐसा मंजर होगा तो ये रहने के लायक जगह बिल्कुल ही नहीं होने वाला है. That simply means that human beings cannot live on in this planet Earth. इसका मतलब यही है कि मनुष्य जो है पृथ्वी में नहीं रह पाएगा. And we have studied already that at the coming of second coming of Jesus Christ, all the living wicked, or the wicked who were resurrected in special resurrection, they will die by the spirit of his mouth or by the brightness of his glory. और हमने पढ़ा कि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तब जो दुष्ट जीवित है और उनके आगमन तक वो उसके शब्द के वाणी से या उसकी महिमा की तेज से उनका क्या हो जाएगा? खात्मा हो जाएगा. वे लोग भी जो लोग उस खास पुनर्स्थान में पुनर्स्थापित हुए थे. And this place, the void and formless and dark place, this is going to be home of Satan with his evil angels for 1,000 years. ये जो आप मंजर, जिसको आप कल्पना में आपने एक तस्वीर बनाया होगा, जो कि बिल्कुल खाली है, बिल्कुल सुनसान है, अंधियारे में है, ये जो है शैतान और उसके दुष्ट स्वरदूतों का, या कहेंगे दूतों का, ये क्या होगा? 1 वर्ष के लिए उनका ये जो है घर रहेगा. They will be limited to the earth. They will not be allowed to have access to other worlds to tempt them or annoy them, but they will be confined to this earth. और ये शैतान और उसके दूत लोग जो है, उनका जो है क्षेत्र जो है केवल ये पृथ्वी रहेगा. वो लोग दूसरे दुनियाओं पर नहीं जा पाएंगे और किसी को परेशान नहीं कर पाएंगे, पर वो इस पृथ्वी पर ही बंधे रहेंगे. And it is in the sense that he is bound.
There are none remaining upon whom he can exercise his power. He is wholly cut off from the work of deception and ruin for which for many centuries he has it has been his delight. और इस 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 कहेंगे इस कारण से या कहेंगे इस ढंग में आप कह सकते हैं कि शैतान जो है क्या है, बंदिश में रखा गया है। क्योंकि अब उसके पास कोई भी नहीं है जिस पर अपना ताकत को वो इस्तेमाल करे। उसको हम देखते हैं कि जो लोगों को छल करता था, धोखा देता था, वो उसको जो है पूरी तरीके से जो है अब वो खत्म हो गया। अब कोई भी नहीं है वो जिसको वो क्या कर सके, वो भरमा सके। For 6,000 years, Satan's work of rebellion made the earth to tremble. 6,000 वर्ष के लिए जो है शैतान के जो विरुद्ध के काम ने जो है पृथ्वी को हिला कर रख दिया। पृथ्वी को ऊपर से नीचे जो है बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। But now we see that as the 1,000 years begin, there is no one for him to tempt. पर जैसे वो 1,000 वर्ष का शुरुआत होता है तो शैतान वो अपने दूतों के साथ अकेले है और कोई भी भरमाने के लिए उसके पास बिल्कुल ही नहीं है। For 1,000 years, Satan will wander to and fro in the desolate earth to behold the result of his rebellion against the law of God. और पूरे वो 1,000 वर्षों के लिए शैतान इधर से उधर जाएगा उस उस पृथ्वी में जो कि रहने के लायक नहीं है, और वो देखेगा कि उसका विरोध करने का नतीजा क्या हुआ। ड्यूरिंग दिस टाइम हिज सफरिंग्स आर इंटेंस, और इस समय के दौरान जो है उसका उस वो जो है बहुत गहरे दुख से गुजरेगा। बिकॉज वट ही हैज बीन डूइंग नाउ ही कैन नॉट डू एनी लॉन्गर। क्योंकि अब तक जो वो करता आ रहा था उसको अब जो है वो नहीं कर सकता है। Since his fall, his life of unceasing activity has banished reflection, but he is now deprived of his power and left to contemplate the part which he has acted since first he rebelled against the government of heaven. जो शैतान जो है, जब से उसने परमेश्वर का विरोध किया है, परमेश्वर का व्यवस्था का विरोध किया है, उसको जो है सोचने के लिए जो उसने कभी समय नहीं लिया। पर ये 1,000 वर्ष वो समय होंगे जब वो सोचेगा, जब वो देखेगा इस इस धरती का हाल को, तो वो सोचेगा और वो देखेगा कि उसका परिणाम जो है क्या है और कैसा होने वाला है। ड्यूरिंग द 1,000 years we see that Satan will be all alone by himself with his angels. इस 1,000 वर्षों के दौरान जो है शैतान अपने दूतों के साथ अकेला जो है इस पृथ्वी में जो है पूरा घूमता ही रहेगा। And in this sense, he is bound, he is chained, chained by the circumstances, chained by the conditions. और इस आधार पर वो जो है बंदी बनाया गया है। इस आधार पर वो जो है उस हथकड़ी से बांधा हुआ है। किसका हथकड़ी? उस तिथि का हथकड़ी, उन जगह का हथकड़ी, उस वो पृथ्वी का जो हाल है उसके हथकड़ी में बंधा हुआ है। अब वो जो करता था उसको अब बिल्कुल ही वो नहीं कर सकता है। My friends, in this sense, he is really bound. अजीजों, इस कहेंगे कि इस स्थिति में जो है वो क्या है, वाकई में बंधा हुआ है। There will be no one. There will be no one at all. No birds, no animals, nothing. और वहां कुछ भी नहीं रहेगा। कोई चिड़िया नहीं, कोई जानवर नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। शैतान, उसके दूत, और कुछ भी नहीं। Satan and his angels and nobody else. Throughout those 1,000 years, they will be just going to and fro, aimless,
पूरे वो 1000 वर्षों के दौरान वो इधर उधर पृथ्वी के जो है घूमेंगे, वो पृथ्वी से बाहर भी नहीं जा सकते हैं। वो इधर उधर घूमेंगे और उनके पास करने को कुछ भी नहीं रहेगा। दे विल बी लिमिटेड टू द अर्थ, दे कैनॉट मूव टू अदर वर्ल्ड्स एज दे कैन डू नाउ, और एज दे कैन गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो लोग कहीं दूसरे ग्रहों पर नहीं जा पाएंगे जैसे शायद अब कर सकते हैं, जैसे वो शायद इधर से उधर जाते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। दे विल बी लिमिटेड कंप्लीटली टू दिस। But at the close of the 1000 years, the second resurrection will take place. पर उस 1000 वर्षों के पूरे हो जाने पर जो है दूसरा जो है पुनर्स्थान होगा। We were studying the first resurrection, the special resurrection, and the second resurrection. हम पढ़ रहे थे पहला पुनर्स्थान, खास पुनर्स्थान, और दूसरा पुनर्स्थान। And at the close of the 1000 years, we see that the second resurrection takes place. हम देखते हैं कि 1000 साल के अंत होने पर दूसरा पुनर्स्थान होगा। That simply means that now the earth will be filled with people. इसका मतलब है अब पृथ्वी जो है लोगों से भर जाएगा। And these people are not good people. These are all the wicked people that you can ever imagine of. और ये जो लोग हैं, ये लोग भले लोग नहीं है, पर ये सब जो है सब दुष्ट लोग हैं। और ये जो है वो दुष्ट लोग होंगे जिनके विषय में आप जो है कल्पना में आप सोच सकते हैं। And the wicked will be raised from the dead, and they will appear before God for the execution of the judgment written. और ये जो दुष्ट लोग हैं, इनको जो है पुनर्स्थापित इसीलिए किया गया ताकि वो परमेश्वर के सामने मौजूद हो, ताकि जो निर्णय, जो सजा इनको लिए लिखी गई हो वो इनको दिया जाए। That's the reason Revelation chapter 20 verse 5 says, the rest of the dead lived not again until the 1000 years were finished. इसी कारण से आप प्रकाशित वाक्य 20 का 5 में देखेंगे, कहता है कि जो मृत थे वो कब तक नहीं जीवित रहे, जब तक 1000 वर्ष पूरा नहीं हुआ। That simply means that for 1000 years Satan and his angels will be bound to the earth, and for those 1000 years, the wicked will be bound to their graves. They will be sleeping as dead. तो हम देखते हैं कि ये 1000 वर्ष में शैतान और उसके दूत पृथ्वी में बंधे हुए रहेंगे, और ये दुष्ट लोग जो है कबर में 1000 वर्षों के लिए जो है बंधे हुए रहेंगे। मृत इंसान की तरह वो क्या हुए रहेंगे, सोए रहेंगे। And after that, we see that the New Jerusalem will come. The New Jerusalem will come. All the ransom will come along. हम देखते हैं कि उसके बाद जो है नया यरूशलेम शहर आएगा, और उसके साथ साथ जितने भी लोग बचाए गए हैं वे भी आएंगे। And Satan, at last, he will try again his power of deception to get all the wicked united with him for the purpose of taking down this new Jerusalem, the city of God. फिर शैतान जो है एक आखिरी कोशिश करेगा, अपने ताकत का इस्तेमाल करेगा, पूरे जातियों के लोगों को जिनको जी उठाया गया है उनको जो है अपने मकसद के लिए, और वो मकसद क्या है, उस नए यरूशलेम शहर, परमेश्वर के शहर को क्या करने के लिए, उसको कब्जाने के लिए। But we see that Satan is defeated, पर हम देखेंगे कि शैतान जो है हारा हुआ है। The efforts, the plan of the enemy, Satan, it will fail. जो कोशिश है, जो योजना है शैतान की, हम देखते हैं कि वो जो है कामयाब नहीं होंगे, पर वो क्या हो जाएंगे, असफल रहेंगे। As the scripture says that Satan,
His angels and the wicked they will be destroyed. जैसे वचन हमें बताती है कि शैतान और उसके दूत और जो दुष्ट है उनका जो है नाश होगा और वे नहीं रहेंगे. And after that we see that the new heavens and new earth will live forever. हम उसके बाद देखते हैं कि नया पृथ्वी और नया आकाश जो है हमेशा हमेशा के लिए रहेगा. And if we look at the chronology of events, or rather how revelation is written, यदि हम देखें जिस क्रम में जो ये घटनाएं हो रहे हैं या हम प्रकाशित वाक्य में देखें तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से कि 1000 वर्षों का अंत जो है प्रकाशित वाक्य 20 में हो रहा है. एंड इफ वी लुक एट द chronology of revelation we see that how the 1000 years are ending in chapter 20 of Revelation, and after that we see chapter 21 speaks about new heaven and new earth. हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 20 जो है उस 1000 वर्ष का जिक्र करता है, और उसके बाद हम जब 21वां अध्याय में आते हैं प्रकाशित वाक्य के, तो प्रकाशित वाक्य जो है नया उस नया स्वर्ग और नया पृथ्वी का क्या करता है, जिक्र करता है. माय फ्रेंड्स, हेवन इज रियल. अजीजों, स्वर्ग राज जो है एक सत्य है, वो सच है. वी रियली नीड टू प्रिपेयर. वी नीड टू रिपेंट. हम सभी को तैयार होने की जरूरत है. हम सभी को मन फिराने की जरूरत है. And tomorrow, when we meet, we're going to study a very important subject. We are going to see that how the real will be tested and how fake will be tested. कल जब हम मिलेंगे एक बहुत खास संदेश को हम देखने वाले हैं. उस संदेश में देखेंगे कि कैसे असली और नकली का परख किया जाएगा. How these two will be separated. कैसे ये दो को जो है अलग किया जाएगा. My friends, God wants to save us. अजीजों, परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं. God wants to see us in the millennium and through eternity. परमेश्वर हमें उस 1000 वर्षों में देखना चाहते हैं, और उसके साथ साथ हमेशा का अनंत काल में भी वो हमें देखना चाहते हैं. The day of salvation is today. Today is the day we decide. Today is the day we choose Christ. जो उद्धार का दिन आज है. आज हमें निर्णय लेना है. आज हमें यीशु मसीह को चुनने का दिन है. My friends, there is no tomorrow. Let us not wait for tomorrow to completely surrender and completely accept Him. My friends, let us really reconsider our ways. अजीजों, आइए हम कल का इंतजार ना करें. अजीजों, यदि आज हमें दिया गया है तो आज हम अपने जीवन को देखें, अपने मनों को परखें और मन फिराएं, और हम परमेश्वर में खोलें. Nobody has seen tomorrow. कल को किसी ने नहीं देखा है. If God has given us today, let us use it to grow in grace. यदि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है तो आइए हम उनमें बढ़ने के लिए इस दिन को हम इस्तेमाल करें. God is doing all that he could to save you and me. परमेश्वर हर एक उन चीजों को कर रहे हैं आपको और मुझे बचाने के लिए. The question is, are you doing everything to be saved and to remain saved? क्या आप वो हर एक चीज कर रहे हैं बचाए जाने के लिए और बचे रहने के लिए? Salvation is daily. Sanctification is daily. अजीजों, उद्धार जो है हर रोज है, और अजीजों जो पवित्रीकरण है वो भी प्रत्येक दिन का है.
Saved doesn't mean saved forever. We have to remain saved through the days we live. अजीजों, हम बचाए गए हैं इसके मतलब नहीं है कि हम बच गए हैं। हम जब बचाए जाते हैं तो हमें उस बचे रहने के लिए परमेश्वर के साथ रिश्ता में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। God is preparing the best for us, and we believe He has already prepared. It is us who are not prepared. अजीजों, परमेश्वर हमारे लिए उत्तम चीजों की तैयारी कर रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि उन्होंने तैयार कर भी दिया है, पर हम तैयार नहीं। If it is you who says, Yes, I want to be ready, I want to commit my life, I want to surrender my life, then please come join me in the prayer of commitment and surrender. यदि ये आप है और आप कहते हैं कि मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना चाहता हूँ, मन फिराना चाहता हूँ और मैं नया होना चाहता हूँ, उनके साथ रिश्ते में बढ़ना चाहता हूँ, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े और इस समर्पण के प्रार्थना में आइए हम दिल से जुड़े कि ये प्रार्थना हमारे जीवन में एक नया शुरुआत करे। Shall we pray? Father in heaven, thank you so much for your grace and for your love. Thank you for the privilege to study. Thank you for the joy of seeing the depths of your words. Father, what is more important is to be committed and submitted to you, and we desire for a life in which you have saved us, and by your strength we remain saved. Lord, purify us, sanctify us, and make us who you want us to be. We really need you so much, Lord. We need you really, really so much. Father, we want to be with you in heaven. We want to enjoy eternity with you. Lord, in your presence we want to live. This is all that we want. Lord, our spirit is willing, but the flesh is weak. We plead, may you strengthen us. May you save us. We surrender our weakness into your hands, our lives into your hands. Have grace upon us. Thank you, God, for everything. Thank you for the Sabbath, and prepare us to be the ones whom you have called us to be. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.